respected great poets, guest poets. I am Bhaskar Jha, and it's a pleasure to welcome you all to the World Thinkers and Writers Peace Meet 2021, being organized by ISISAR Kolkata. We are grateful to Dr. Santinath Chattopadhyay for organizing such a beautiful program. Before I start going in details, first of all, I would like to invite on the screen the literary convener of ISISAR, Mrs. Nandita Samanta. Then I would like to invite Dr. Krishna Mohan Jha, Dr. Ayaz Rasool Najki, Sharda Jha, Parvez Ali. If he is available, he can be included in. If not, then we'll move to the next participant, Muhammad Zahid, Bodhisattvaji from Mumbai, Dr. Arunab Saurav, and most importantly, my technical support, Gunjan Sri. So welcome you all once again, and we will be welcoming the poets coming later on, joining us. So let me tell you that I am Bhaskar Jha. It's my pleasure to welcome you all to the World Thinkers and Writers Peace Meet 2021, which is being organized by a reputed organization of Kolkata, ISISAR, and for organizing such a beautiful program, the multilingual meet, we'd like to show our gratitude to the President and Executive Director of ISISAR, Dr. Santinath Chattopadhyay, Joint Secretary Dr. Sudipto Chatterjee, and the literary convener Mrs. Nandita Samanta once again. Before I just go into the details now, to start with, first of all, I would like to invite our convener, our literary convener, Mrs. Nandita Samanta, to give an overview, to give an introduction of this program, introduction to ISISAR and what is its objective, so that the poets coming from different walks of life, different parts of our country, would get to know what is ISISAR, what is its mission and vision, what is its objective, and what is the purpose of organizing this beautiful program. So, respected Nandita Samanta, please be specific and introduce ISR to all of us. Thank you. A very warm welcome to all of you, all poet guests here this evening. On behalf of ICSR, I would be welcoming and thanking you, showing my gratitude for accepting our invitation and enlivening this evening. ICSR is an international forum for cultivating universality in quest of peace and is a purely non-profitable organization. It is an organization aiding intercommunication and sharing of one's progressive view in advancing intercultural peace movement, leading to the organizing of Federal Earth Movement. ECSR takes this world culture in a very wider sense. It is to welcome and intercommunicate the essence of
Each culture, as Dewey said, culture means to cultivate. In this sense, culture means cultivation of human values, and thus intercultural studies and research implies intercommunication of ideas, values inherent in each culture. Such an attitude will promote universality through the growth of intercultural relations and understandings in quest of harmony and peace. International Society for Intercultural Studies and Research, ECSAR, on 1st January 1983 got registered under West Bengal State Registration Act. This society is working to cultivate attitude through exchange and sharing of one's progressive views for uplifting and raising mankind from an inherited past to a prospective future, where the primary interests of the people will be to foster the process of cooperative and coexistent society. Peace isn't just a word from the mouth, it is a process. So, intercultural society initiated this process, and this process is to keep a balance and between harmony and peace in inner self and around. Thank you. Without much say, much ado, let us begin our session. Over to Bhaskar. Shall I invite Thank you first so much. Bhaskar? Yes, Nandita ma'am. Actually, you wanted to say something more? No, I wanted to know whether we start the session before. I want you to say a few words. Okay. Now to start with the program formally, just we are going to start with the poets reciting their creations. So first of all, uh, Nandita ma'am would be telling something about the bio of the poets whose turn comes. The first of all, I would like to invite to recite a poem. Let us welcome Sharda Jha, Mathili poet, and for that I would read out her bio first of all. Thereafter, because Parvez Ali is not here, not available, not with us, so moving on to the next poet, Sharda Jha is here. Sharda Jha is an exceptional poet with profound emotions. Her poems are an extension of the rich and exquisite tradition of Mathili poetry. Despite writing in multiple genres, one can easily observe a uniformity in her ideological beliefs. She has penned 3 books of poetry, in which one is in Hindi. The title of the book is Tere Khayalon Ki Dhoop, and 2 in Maithili. The books are Prem Kavitak Baad and Beat Jaibak Kram mein, and one more very outstanding distinct quality of her, that she has come up with a beautiful translation of a very reputed anthology of Maithili written by Ajit Azad. She has translated his book into English, Mrityu Thik Bichar, and the English translation, the book it translated into English is Death is a Notion. So, ma'am, please, with due honor, please recite your Mathili poem. Please unmute yourself. थैंक यू सो मच भास्कर। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मेरी पहली कविता है रंग राग। जीवन जीबाक ताम झाम में बिसर गिर रही वही गाछक जड़ जकर पात पात पर लिखल छल नाम मात्र अहीं। सुखायल पातक तूब जायब देखैत रहलहुँ अछि हम।
जकर संगे चुभ जाइत छल हरियरिक एक एक बुन रंग। समयक अदृश्य ताग सँ बान्हल जीवि रहल छल आस आ भरोस। युगक अंतराल पर भेटल अहाँक हृदयक स्पंदन। हमर अहाँक जीवन सँ जे हरियर रंग भऽ गेल छल निपत्ता, एहि साउनक पहिल बरखा में झहरैत देखलहुँ अछि अपन आँचर पर। जागि उठल फुनगी, लहकि उठल अमलतास आ पलाश। हरियर आँचरक ओढ़ में जोगा रहल छी हम रंग आ राग। दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है धरती देह पर जागल अछि हमर अस्तित्व। नहीं अछि हमर घर सीरिया आकि अफगानिस्तान में। नहीं अछि हमर घर सीरिया आकि अफगानिस्तान में। हमरा हेबाक चाही स्वतंत्र, उन्मुक्त आ किसी के यहाँ प्रसन्न। कोई बोल रहा है, हेलो। किसी के यहाँ से एडिशनल आवाज आ रही तो सुनने में नहीं आ रहा है। जी मैं फिर से शुरू करती हूँ। धरती देह पर जागल अछि हमर अस्तित्व, यह कविता का शीर्षक है। नहीं अछि हमर घर सीरिया आकि अफगानिस्तान में। हमरा हेबाक चाही स्वतंत्र, उन्मुक्त आ प्रसन्न। हमरा देखबाक चाही स्वप्न भविष्यक, आ करबाक चाही अपन इतिहास पर गर्व। मुदा कतौ सँ नहि छी स्वतंत्र। समाजक दोहरा चरित्र में फंसल अछि हमर आजुक संकल्पना आ भविष्यक बोध। कतेकटा अछि समस्त संसारक माथ पर ई आकाश। कतेकटा अछि समस्त संसारक माथ पर ई आकाश। आकाश में उड़ैत उजरा परवाक पंख पर लागल छै तानाशाहक मोहर। गृह युद्ध आ तानाशाहीक जाल में स्वतंत्रता हुकरि रहल अछि। हम छी स्वतंत्र मुदा लक्ष्मण रेखाक भीतर। हम छी उन्मुक्त मुदा पंख काटल परवा जकाँ। हम करैत छी प्रसन्न रहबाक कोशिश, मुदा ओकर कारण लिखल रहैत अछि तानाशाहक कलम सँ। नीमन बढ़िया कविता, बढ़िया। ठाढ़ होइत छी हमही गृह युद्धक आगि में अपन अस्तित्व के बचेबाक लेल। मोन आ प्राण में आकाश भरने हमही उड़ैत छी युद्धक कारी कपाल पर। हम धरतीक देह पर जागल छाया छी। दू घूंट शीतल जल में अछि हमर वास। सब रंग के समाहित केने अपना में उज्जर अछि हमर रंग। हमरे बाट तकैत अछि सीरियाक बच्चा आ अफगानिस्तानक स्त्री सब। मोन प्राण सँ हमही छी सभक काम में। ठाढ़ छी हम केवाड़क ओर में, मुदा केवाड़ क्यों नहीं खोलैत अछि। धन्यवाद। भास्कर जी यहाँ म्यूट पर छी। Please unmute yourself. So, thank you so much for highlighting, for reflecting the feminine voices through your letters, the second one, and the first one reflecting different colors of love and romance. Very interesting one. Now, our next poet is Bodhisattva ji. Bodhisattva ji from Mumbai. Bodhisattva, and Okay. to read his bio, Nandita Samanta, please. हार्दिक स्वागत बोधिसत्व जी। जी बोधिसत्व जी एक चर्चित कवि एवं सुप्रसिद्ध लेखक हैं। उनकी प्रकाशित किताबों के बारे में बता दूं। सिर्फ कवि नहीं, 1991 हम जो नदियों का संगम है 2000, दुखतंत्र 2004, खत्म नहीं होती बात 2010, ये 4 कविता संग्रह प्रकाशित है। लंबी कहानी विशोत्सर्ग 2005, तार सप्तक कविताओं के काव्य सिद्धांत शोध प्रबंधक 2016, संपादन गुरुवे नमः 2002, भारत में अपहरण का इतिहास 2005, रचना समय के शमशेर जन्म सती विशेषांक का संपादन 2010, प्रकाशनाधीन
किताबें हैं कविता का सत्संग, लेख समीक्षा और व्याख्या। अब जान गया हूँ तो 5वीं कविता संग्रह, महाभारत के अर्ध सत्य, महाभारत का 3 भागों में अध्ययन। अन्य लेखन शिखर 2005 और धर्म 2006 जैसी फिल्मों का और दर्जनों टीवी धारावाहिकों का लेखन, जिनमें आम्रपली 2001, 1857 क्रांति 2002, महारथी कर्ण 2003, रेत 2005, कहानी हमारे महाभारत की 2008, देवों के देव महादेव 2011 से 14, जोधा अकबर 2013 से 15, चंद्र नंदिनी 2017 जैसे बड़े धारावाहिकों के शोधकर्ता और सलाहकार रहे हैं। इन दिनों रामायण पर बन रही एक फिल्म के मुख्य सलाहकार और शोधकर्ता भी हैं। साथ ही अनेक OTT प्लेटफॉर्म के पौराणिक धारावाहिक के मुख्य शोधकर्ता और सलाहकार हैं। सम्मान कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल सम्मान 1999, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान 2001, संस्कृति सम्मान 2001, हेमंत स्मृति सम्मान 2002, फिराक गोरखपुरी सम्मान 2013 और शमशेर सम्मान 2014 प्राप्त है, जिसे वापस कर दिया। अन्य कुछ कविताएं देशी विदेशी भाषाओं में अनुदित है। कुछ कविताएं मॉस्को विद्यालय में स्नातक के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाई जाती है। 2 कविताएं गोवा विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में शामिल था। फिलहाल 19 साल से वो मुंबई में रहते हैं। सिनेमा, टेलीविजन और पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखाई का काम जारी है। आपको हार्दिक स्वागत है अपनी कविता पाठ करने के लिए। आप सबका आभारी हूँ, और भास्कर जी का और IESAR का और मित्र कृष्ण मोहन जी का, जिन्होंने चाहा कि मैं यहाँ रहूँ, और उनके अनुदेश पर और उनके साथ होने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और आप लोगों को न जान पाता अगर मैं यहाँ नहीं होता, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी 2 छोटी छोटी कविताएं पढ़ देता हूँ, जिससे मुझे लगता है 4-5 मिनट जाएंगे, और फिर मैं आप लोगों को सुनूंगा उसके बाद। ठीक है ना? मेरी आवाज जा रही है साफ साफ ना? हाँ, अच्छी आवाज आ रही है। नमस्कार, आ रही है आवाज। अच्छा, जी जी, नमस्ते नमस्ते भाई, थैंक यू। 2 कविताएं पढ़ रहा हूँ। पहली कविता है संदिग्ध समय में कवि। एक समय ऐसा आया कि कुछ लिखने को बचा ही नहीं, कवियों और विचारकों का पूरा आर्यावर्त ही संदिग्ध हो गया। कविता बहुअर्थी हो गई थी और कवि स्वार्थी। किसी को किसी पर भरोसा न रहा। एक ही पता लोग कई लोगों से पूछते थे, और पहुंच जाने पर भी यकीन नहीं होता था कि पहुंच गए। वे सुरक्षित हैं और सोने के बाद कोई उनका गला नहीं दबाएगा। वे सुरक्षित हैं और सोने के बाद कोई उनका गला नहीं दबाएगा। यही बात उनके खुश होने के लिए बहुत थी। उनके खाने में विष नहीं था, इसी बात पर वे आभारी होते थे दुनिया भर के। पत्तियों के आभारी होते थे पेड़ कि वे अकाल उनका साथ नहीं छोड़ रहे। मिट्टी के आभारी थे पेड़ कि वह जड़ों को नमी खींचने दे रही है। लकड़हारे आभारी थे पेड़ों के कि वे अगले दिन भी कटने के लिए खड़े रहते हैं, पृथ्वी में पैर धंसाए। शासक को लोग झूठा मानते थे, उससे बढ़कर कोई विदूषक न था, और वह वचन तोड़ता था कि अगला वचन दे सके, और लोग सारी बातों को संदिग्ध मानकर भी भरोसा कर लेते थे। राजधानियों में संदिग्ध परछाइयां रातों को भटकती थीं,
राजधानियों में संदिग्ध परछाइयां रातों को भटकती थीं। वे किसी के भी फोन से डेटा और सपने चुरा लेती थीं। समय ऐसा था कि धोखे की सारी आशंका के बाद भी एक स्त्री एक अपरिचित पुरुष से मिलने अपरिचित ठिकाने चली जाती थी और धोखा खाने के बाद भी वह इसलिए आभारी रहती थी कि अपरिचित व्यक्ति ने उसकी हत्या नहीं की। कविता संदिग्ध हो गई थी, शब्द खो चुके थे अर्थ। कविता संदिग्ध हो चुकी थी, शब्द खो चुके थे अर्थ। फिर भी लोग कविता से एक उम्मीद लगाए रहते थे कि एक दिन वह सही सही अर्थ दे पाने में शब्दों की मदद करेगी और कोई भी शब्द बिना अपना अर्थ पाए अपमानित होकर नहीं मरेगा और क्या कोई बात। भी शब्द बिना अपना अर्थ पाए अपमानित होकर नहीं मरेगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई। अगली कविता है सुख सूचक शिलालेख। एक तरह से दोनों कविताएं एक दूसरे का एक एक्सटेंशन है। आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से पीठ टिका के बैठी हो जैसे। सुख सूचक शिलालेख। राज्य द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रजा हर प्रकार से सुखी है। सूचित किया जाता है कि सुखी प्रजा के पास वह सब है जितना और जो राजा के पास है, मंत्री के पास है, अफसर के पास है, नगर कोतवाल के पास है। सूचित किया जाता है कि अब सत्य का शासन है, सत्य का ही बोलबाला है। राज्य में कोई निर्धन नहीं है, राज्य में कोई शोक नहीं है, राज्य में कहीं भी अंधकार नहीं है। सूचित किया जाता है कि पूरे राज्य में जो दुखी हैं वे राज्यद्रोही हैं, वे सत्ता के शत्रु हैं, वे विधर्मी हैं, वे झूठे हैं। सूचित किया जाता है कि राज्य में दुख का समूल नाश कर दिया गया है, अब केवल जय जयकार बचा है। सूचित किया जाता है कि धिक्कार अब व्यभिचार है, एक दंडनीय अपराध है क्षोभ। सरकार के सेवकों को दिया जाता है यह अधिकार कि राज्य में जो भी दिखाए दुख उसे सेवक समझाएं कि अलग अलग नहीं होता सुख से दुख कभी। सूचित किया जाता है कि प्रजा के दुख से दुखी रहते हैं राजा, तो राजा को सुख देने के लिए प्रजा भूल जाए अपने सब दुख। सूचित किया जाता है कि दुख और दुखी प्रजा के लिए राज्य में कोई स्थान नहीं। किसी दुखी की सहायता भी राज्य में द्रोह है। अब सूचित किया जाता है कि अब न रोग है न व्यथा है, चतुर्दिक ऐसी ही बेजोड़ व्यवस्था है। सूचित किया जाता है कि शिलालेख और उसकी सूचनाओं पर अविश्वास और आश्चर्य प्रकट करना, किसी भी तरह की क्षति पहुंचाना भी द्रोह है राज्य से। थैंक यू सर, थैंक यू भास्कर जी, थैंक यू कृष्ण मोहन, सभी का आभारी हूँ। थैंक यू। It's a wonderful poem, sir. सामाजिक, बहुत खूब। राजनीतिक और सबसे बड़ा जो इकोसेंट्रिक जो विजन है और खास कर सांकेतिक भाषा में जबरदस्त poem है, sir. वर्तमान जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति है उस पे जो आपकी जो पारखी नजर है और उसने अपने शब्दों के माध्यम से जो बयां किया है अपने आप में काबिले तारीफ है। और साथ साथ आपने कविता के जो अर्थ मर्म और कविता के जो अभिव्यंजनात्मक गुण के ऊपर जो आपकी जो रचना, ये सब मिला के देखिए टोटल पैक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब में जो सूचित किया जाता है that is the catch word. That's the catch. Thank you, sir. That is actually, I think that is the impact of Mangesh Dabral is perceptible. His style of writing his poetry has got the impression as if I am reading one of the very popular poem by Mangesh Dabral.
So, sir, actually, I will discuss about it later on. Now, moving to बहुत the good, बहुत next good. poet, uh, Imran Yusuf Muhammad Zahid. Okay, now uh, Imran is there? Ayaz Rasul Nazki. Ayaz, sir. Sir, Yes. is here. So welcome, sir. And now I would request you to recite your poem. Before you recite, let me read out your bio. A very short one. अरे खास है ही नहीं, वहाँ क्या पढ़ना है यार, ऐसे ही रहने दो. आपकी कविता सब कुछ Ayaz बता जाती है, सर. वही You don't बात need a करें. bio. sir, your novel, that Upanyas Satisar, it Yes, has sir. catch attention of the very large majority of the people. Ayaz Thank you very much. Rasul God bless. Nazki is a multilingual poet, novelist, and painter. He has published 8 volumes of poetry in 3 languages: Kashmiri, Urdu, and English. A novel in English, Satisar stands out as a remarkable book of historical fiction about Kashmir, which is Nazki's home. He has also edited anthologies, translated poetry and prose, and written on cultural issues. So, with these words, so welcome, please recite your poem. Thank you very much. Thank you very much. I am really happy to be back on ECSR platform, and I We are always recall. honored, sir. We are honored, sir. Thank you, Nandita. I always recall my visit to Calcutta for ECSR some 2 years back, and it's not only what ECSR is doing directly. Indirectly, it is bringing together so many poets and writers throughout the world. I have developed some linkages at Calcutta in ECSR Meet, which continue to enrich me. And that is one of the greatest things that it is doing. Anyway, we are in autumn in Kashmir right now, and autumn is a very beautiful season. Kashmir is beautiful throughout all the seasons. But personally, I like the autumn best because of the colors that you see around. And the advent of autumn here is actually heralded by an insect, which is in Kashmiri we call it Dachipompur. Zahid will understand. Dachipompur starts its, uh, Absolutely, sir. Absolutely. it's for whatever you call that, it's a song or whatever, but it doesn't allow you to sit quiet anywhere. कहीं से खिड़की से आएगा, कहीं से दरवाजे से आएगा, कहीं से ऊपर से नीचे से. There's a small insect, but it has a very shrill and metallic sound. On that, I have written a little poem. My poems are very small, by the way. They are not very long poems anyway. I looked up the net to find its actual English name. It's called as cicada, Cicada, cicada. But in Kashmiri, it was a wonderful name, Dachipompur. Dash is grape, and pompur is any moth, grape moth. When the grapes ripen, this moth comes. Cicada. Yes, it is here. Yes, it is here, hidden on the tree trunk, invisible, full of deceit, deception, camouflage. Its shrill song, the song of death. Cold metallic cry pierces the soul, bleeds the green into rusty brown on the tree tops. Yes, it is here, hidden on the tree trunk, invisible, full of deceit, deception, camouflage. Its shrill song, the song of death. Cold metallic cry pierces the soul, bleeds the green into rusty brown on the tree tops. It trumpets the winter. It trumpets the winter, the death of summer. Autumn is just a bridge between the valley of life and barren land of death. Autumn is just a bridge between the valley of life and the barren land of death. Cicada. The pallbearer, the white stitchless shroud, snow over the land, a thoughtful covering over a corpse. So that is cicada. If you have time, I can read another poem. It is called, titled Chinar. Chinar, you know, is our famous tree.
And chinar should be seen in autumn because it is almost on fire. And that is why it has been named as chinar. What a fire! Chinar. Persian chinar is Arabic. Chinar, what a fire. They say somebody came from the outside and he saw chinar in autumn. He thought there's a fire somewhere because every leaf turns almost fiery red in autumn. And then it goes into brown, multiple colors of chinar. So I have a little poem on chinar. Decay began years ago. Decay began years ago. First leaves withered, dried and fell off. First leaves withered, dried and fell off. Then the branches twirled and broke away, one by one. Then the branches twirled and broke away one by one. The nests disappeared, nests of birds. Decay began years ago. First leaves withered, dried and fell off. Then the branches twirled and broke away one by one. The nests disappeared. Then only a passing bird would rest for a while on the stump of a branch and then fly away, leaving the forlorn tree as lonely as before. The tree stands in silence, waiting for the gush of wind, its moment of deliverance. The tree stands in silence, waiting for the gush of wind, its moment of deliverance. Thank you very much. God bless you all. I'm so happy to be here. Beautiful बढ़िया poem, सर। sir. Very, very intense, very deep. रसूल सर बहुत अच्छी कविता। Thank you, sir. Thank you, sir. I'm honored. Please, please. Wonderful poem, sir, as always. Zahid, thank you. Okay. Thank you so much, sir. Just giving the landscape and as well as your wonderful thoughts. Now, uh, I would like to welcome and invite Naval Sri Pankaj. He's a Maithili poet, and here is his bio. Naval Sri Pankaj is an emerging poet, ghazal writer in Maithili literature. He has his different styles and specialization in saying ghazals in different ways. His Bal ghazals describe the true emotions of children and touch the inner soul of the heart. His creations have been published in several magazines, web portals, etc. His first book of ghazal is under publication, and uh, I'm really happy to have you here, Adarniya Naval Sri Pankaj. Please recite your poem. Please unmute yourself. Naval Sri Pankaj. So some technical glitches seems. Now moving on to the next poet, I would now request Dr. Krishna Mohan Jha, Hindi poet, and a bio by Nandita ma'am, Nandita Samanta. Dr. Krishna Mohan Jha. Welcome, sir. Dr. Krishna Mohan Jha is a poet and literary critic, writes both in Hindi and Maithili, has published two collections of poems, Samay Ko Cheel Kar in Hindi and Ekta Hiryal Duniya Maithili. He is a recipient of Kanhaiya Smriti Samman 1998, Hemant Smriti Kavita Purashkar 2003, and Kirti Narayan Mishra's Sahitya Samman 2013. Currently working as a professor of Hindi, Department of Hindi, Assam University, Silchar. Welcome you, sir, to read your poems.
अनम्यूट करिए कृष्णमोहन भाई। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही नहीं है नहीं, अब? हाँ सर, हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। आ रही जी है। जी, नमस्कार फिर से। ISISAR का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, एक मौका दिया आप सबसे मुखातिब होने का। और उपस्थित कवि मित्रों, दो छोटी कविताएं आपके सामने पेश है। चींटियों का दुख। ये पीछे से आवाज आ रही है कहीं से, मुझे लगता है किन्हीं का ऑन है शायद माइक। जी, चींटियों का दुख। चींटियों के भी तबाह होते हैं घर, चींटियों के भी निकलते हैं पर, चींटियां भी शव यात्रा में शरीक होती है। चींटियों के भी तबाह होते हैं घर, चींटियों के भी निकलते हैं पर, चींटियां भी शव यात्रा में शरीक होती हैं। लेकिन चींटियों का दुख हमें दिखाई नहीं देता, चींटियों की पीड़ा हमें विगलित नहीं करती, चींटियों की मृत्यु रुलाती नहीं हमें। चींटियों का भी होता होगा कोई ईश्वर जरूर, छूट जाते हैं कभी हमसे भी हमारे घर, अपना ही कोई हाथ देता हमारे डैनों को भी कतर, हमारी दुनिया भी देखते देखते राख हो जाती है। हम भी कटी हुई जीभों से करते हैं विकल प्रार्थना, क्या पहुंचती होगी कहीं हमारी भी आवाज। और ये दूसरी कविता, अस्थि और उम्मीद। बहुत अच्छी कविता भाई, बहुत अच्छी। पहले भी सुन चुके हैं लेकिन बहुत अच्छी है। प्लीज अस्थि अस्थि और उम्मीद। बहुत अच्छी कविता है कृष्णमोहन भाई। जी बहुत आभार। जहां कहीं हाथ रखता हूं, मेरी छुअन के इर्द गिर्द उड़ने लगते हैं तितलियों जैसे असंख्य स्पर्श। जहां कहीं हाथ रखता हूं, मेरी छुअन के इर्द गिर्द उड़ने लगते हैं तितलियों जैसे असंख्य स्पर्श। उदासी और उम्मीद में जब भी उठाता हूं हाथ, देखता हूं कमल जैसी अनगिनत भुजाएं पहले से ही ऊपर उठी हुई, फूलों की विलीन पंखुड़ियां और वनस्पतियों की विगत प्रजातियां शैया बनकर बिछी हैं वहां, अभी अभी जहां एक फूल गिरा है आकर। नदियों में जाकर मुझे अक्सर लगा है कि सदियों से पानी को चीरती अधीर बाहों और अथक जंघाओं ने मुझे डूबने से बचाया है। खुद इस जीवन ने मुझे बताया है कि मात्र जीवितों पर नहीं, दिवंगतों की अस्थि और उम्मीद पर भी टिकी होती है यह दुनिया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। बहुत ब्यूटीफुल अच्छी, पोएम्स, बहुत अच्छी। बोथ इक्वली गुड। जो दृष्टि है, कवि को देखने की दृष्टि, वो कविता के माध्यम से इतने बेहतरीन ढंग से उभर के आई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अब आभार। स्वागत करता हूँ, फिर से स्वागत करता हूँ। समय की थोड़ी सी पाबंदी है एक्चुअली, जस्ट दैट्स व्हाई वी हैव टू जस्ट कीप द प्रोग्राम मूविंग ऑन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एंड अब हम स्वागत करै छियनि अपन मैथिली कवि नवल किशोर पंकज जी के, जिनकर बायो, whose bio I have already read out, but once again I would like to read out his bio.
Naval Sri Pankaj is an emerging poet, ghazal writer in Maithili literature, gifted with different styles, and has keen insights of a specialization in saying ghazals in a different ways. His first book, the collection of ghazal is under publication. So with these words, I welcome you. नवल श्री, अहाँ कविता पढ़ सकै छी ने आब कि फेर गड़बड़? Once again, he has got disconnected, I think. Anyway, moving to No problem, Bhaskar ji. If you allow me, I will recite the Naval Sri's poem. Yeah, you can do that. You can do it. Most welcome. Most welcome. Thank you. Yep. Yeah. कविता का शीर्षक है प्रेमक त्रिकोण। वाह। पिता से आरंभ होइत हम, हमरा से शुरू होइत हमर बेटा, आ पोता पर समर्पित बाबा। पिता से आरंभ होइत हम, हमरा से शुरू होइत हमर बेटा, आ पोता पर समर्पित बाबा। संस्कृति, संवेदना आ उन्मुक्तता से बनैत संबंधक त्रिभुज, आ एही एकटा त्रिभुजक तीन अलग अलग बिंदु पर नचैत तीन पीढ़ीक सोच। सिद्धांतक सरलता से सटैत, व्यवहारक जटिलता से बिलगैत, समकोण रखबाक आदैत आ समबाहु रखबाक जिद में त्रिभुज बदलैत अछि कतेको आकार कैक बेर। मोजर आ खगताक हिसाब से बनैत बदलैत प्रेमक त्रिकोण, महत्व आ आकांक्षाक बीच अंतहीन होइत महत्वाकांक्षा, आ ताहि क्रम में बढ़ैत घटैत दूरीक संग चलैत रहैछ आपस में बाहु आ कोनक उपरौंज। मुदा मोन तैयो निश्चिंत आ स्थिर अछि, एनमेन बिंदुए जकाँ, कियाक तऽ सोचक अंतर सँ भने बदलि जाय कोनक मान, मुदा ई तऽ तय छै जे त्रिभुजक तीनू कोणक योग 180 डिग्री सँ फाजिल वा कम किन्नहु नहि हैत। आ एही ज्यामितीय सिद्धांत पर खेप रहल अछि तीन पीढ़ीक सामंजस्य आ निमहि रहल अछि पिता, पुत्र आ पौत्रक संबंध। वाह, बहुत बढ़िया। हिनकर एकटा हम भास्कर जी जे हिनकर जे दुनू पढ़े के रहन से हम दोसर गजल पढ़ि दै छी 1 मिनट में। बाल गजल के हिनकर चर्च भेल तै पर ई हमर भाग जे पंकज के चीज हम पढ़ि रहल छियन। तऽ से दूधक लोटा ओ उंघरेलको, हमरा पर तमसाइ छिही। दूधक लोटा ओ उंघरेलको, हमरा पर तमसाइ छिही। बुझि गेलियो हम आब के बुढ़िया, तू बस ओकरे माय छिही। शेर कर ओकरा दिलहिन मोट ओछैना, हम सुतै छी अखरे पर। गिरवो छीन रहल अछि भैया, तैयो नहीं खिसियाई छिही। वाह वाह, अगला शेर। ओ पढ़तो अंग्रेजिया स्कूल, हम किया सरकारी में। ओ पढ़तो अंग्रेजिया स्कूल, हम किया सरकारी में। ओकरा लेल बुकै छै टाका, हमरा पढ़ा बिकाई छिही। बुझा गेले गे आय के बुढ़िया, तू बस ओकरे में छै। ओकर हाथ में लूडो लट्टू, हम उगरने चुल्हि किया। ओकर हाथ में लूडो लट्टू, हम उगरने चुल्हि किया। हमर जन्म से व्यथित मुदा, ओकरा जनि अगराई छिही। बुझा गेलो गे आय गे बुढ़िया, तू बस ओकरे में छै। ओ जँ दू बिछौ पाथर परहक, ओ जँ दुई बिछौ पाथर परहक, हमहूँ बढ़ि सँ छानल नहि। ओ जँ दुई बिछौ पाथर परहक, हमहूँ बाढ़ि सँ छानल नहि। ओकर बियाहक नहि धरफरी, हमरा लेल अगुताई छिही। ओकरा पोसि रहल छें, हमरा उघि रहल छें, एना किया। ओकरा पोसि रहल छें, हमरा उघि रहल छें, एना किया।
अपने कोख सजलने हमरो बनल कोना सतमय छी। अंतिम शेर है गजल के। धिया बहुत बढ़िया। धिया अपूतक बीच ई मिथ्या भेद ने जाधरि दूर हेते। नवल समाजक समृद्धि पर फुसिया है अगराय छी। दूधक लोटा ओ ओंघरिल को हमरा पर तमसाय छी। बुझ गेलियो हम आब के बुढ़िया तू बस ओकरे में छी। बहुत धन्यवाद। ई नवल श्री पंकज के गजल हम पढ़लहुं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुंजन जी, प्लीज include Imran Yusuf. He is in the studio, and since screen is also empty, let him Imran in, Yusuf please. is not in the studio, Bhaskar ji. Huh? Imran is not Please here. join. कभी मौका मिलेगा तो नवल श्री जी से सीधे सुनेंगे इनकी गजलें। जरूर जरूर। और नवल मैथिली भाषा में बाल गजल के बहुत चर्चित नाम हैं। नहीं, अच्छी भावनाएं बोली हैं इन्होंने, अच्छी बातें कही हैं। और मैं मैथिली बोल नहीं पाता हूँ लेकिन समझता पूरी हूँ। समझ में आई और बहुत अवध अच्छा से लगा। मिथिला का पुराना रिश्ता है। हाँ, ये तो है। ये तो है। भास्कर जी, Gunjan sir, इमरान यूसुफ जी स्टूडियो में नहीं है। actually, he is asking me that he is in the studio. I have also requested him many times, and he has been waiting for a long time. Yeah, Mohammed. Okay, let me. Please. भास्कर जी, And he is writing so is full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, भास्कर 8, जी, 9. Yes, sir. मुझे कभी भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे कोई उलझन नहीं। मैं निकलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मुझे भी भास्कर जी, दूसरे लोग इसलिए स्क्रीन आप पर आए। कार्यक्रम को आगे ले जाओ, आप इसमें मत बिल्कुल, अटको, ठीक है? जी, ठीक मुझे है भी सर, आप कोई बात ड्रॉप नहीं सर। थैंक यू सर, वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपको मैंने बहुत प्लीज परेशान किया, इसलिए क्षमा प्रार्थी भी। मुझे जी। आप जल्दी आपका और परेशान कभी करो, बायो कोई दिक्कत कभी बायो के लिए, कभी पोएम्स के लिए, कभी कंफर्मेशन के लिए, नहीं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण मोहन भाई, बिमलेश बहुत जी, धन्यवाद नंदिता सर, जी, रसूल सर, बहुत धन्यवाद, गुंजन बहुत जी, शुक्रिया आने सबसे के लिए प्रणाम सर। करता हूँ, कुमुद जी वगैरह प्रणाम। I loved your poems, Bodhisattva ji. थैंक यू सर, मिलते हैं कभी। थैंक यू। कृष्ण मोहन भाई। Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now Imran Yusuf, he will join, and actually it is his turn only, and that's why I'm waiting for him trying. He's writing trying. Okay, once he sends the request, Gunjan Sri, please let him in. Okay. Bhaskar ji, just you may drop me too. I mean, if you feel so. Okay sir, thank you so much sir. So बहुत धन्यवाद आपका, हमारे आमंत्रण को आपने स्वीकार किया, इस कार्यक्रम में आए, इसको सफल बनाने में आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। Imran Yusuf is not there. Okay, Zahid bhai, sorry for keeping you waiting. Now, since I think you're sitting in the car, so I would like to request you to recite your poem. Zahid bhai, you're listening to me na? Hearing me na? Zahid bhai, are you there? Please unmute yourself, Zahid. It's having network issues. Network issues. No problem. Please continue with the next poet. Yeah, Dr. Arunabh Saurav is here. Arnab Saurabh Bala is here. Okay, Dr. Arnab Saurabh is here. Okay, so welcome you sir. Okay. Arnab Saurabh जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं नंदिता मैडम से आग्रह करूंगा कि उनका कृपया बायो पढ़ के सुनाएं। डॉक्टर अरुणाभ सौरभ। डॉक्टर अरुणाभ सौरभ, उनका जन्म 9 फरवरी 1985 चैनपुर सहरसा बिहार में हुई है। शिक्षा MA BHU से किया है, B.Ed जामिया मिलिया इस्लामिया से, PhD तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, नेट JRF
एनी से सिलेक्ट किया है। प्रकाशन है हिंदी की सभी प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रमुखता से कविताएं प्रकाशित, साथ ही समीक्षाएं और आलेख भी प्रकाशित। हिंदी के साथ साथ मातृभाषा मैथिली में भी समान गति से लेखन प्रकाशित है उनके। दिन बनने का क्रम में हिंदी कविता संग्रह 2014 भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित। लंबी कविता का वितान आलोचना पुस्तक विजया बुक्स दिल्ली 2017। आद्य नायिका लंबी कविता 2017। इतना ही हिंदी कविता संग्रह 2020। किसी और बहाने से कविता संग्रह 2021 भारतीय ज्ञानपीठ। अनुवाद है कन्नड़ के वचन साहित्य का अनुवाद। जैसे अंधेरे में चांद मैथिली कवि तारानंद वियोगी की कविताओं का अनुवाद पुस्तिका से 2013। असमिया कवित्री कविता कर्मकार की रचनाओं का हिंदी अनुवाद। मैथिली कथाकार प्रदीप बिहारी की कहानियों का अनुवाद। तालाब में तैरती लकड़ी भारतीय ज्ञानपीठ। मैथिली में प्रकाशित किताबें हैं एतबेटा नाही कविता संग्रह 2011, ते किछुआर कविता संग्रह 2018, भाषा शिक्षण मैथिली 2020। युवा 12/3 में रंजन श्रोत्रिय के संपादन में बोधि प्रकाशन जयपुर से साझा संकलन में कविताएं संकलित 2015। कई साझा संकलनों में कविताएं शामिल। पुरस्कार और सम्मान के बारे में बताती हूँ। भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली का नवलेखन पुरस्कार, साहित्य अकादमी नई दिल्ली का युवा पुरस्कार, महेश्वरी सिंह महेश स्मृति ग्रंथ पुरस्कार पटना, देसिल बैना सम्मान हैदराबाद, महेश अंजुम स्मृति युवा कविता सम्मान। अभी एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एवं स्वतंत्र लेखन करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपना कविता पढ़ के हमें सुनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम नंदिता, और यहाँ उपस्थित जो सभी कवि मित्र हैं सबको संवेद नमस्कार। मेरा ख्याल है कि मेरी कविताएं 2-2, 3-3 पेज की होती है, तो मैं एक ही कविता पढ़ देता हूँ। आपका समय भी बच जाएगा और मैं फिर लीव भी हो जाऊंगा, तो आप किन्हीं को जोड़ना हो तो आसानी से जोड़ भी लें। हमारे यहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या है, मैं जंगल और पहाड़ पे रहता हूँ। तो इसका शीर्षक है धरती माता भारत माता। ये लोहिया जी की किताब है, जिसका हमने शीर्षक लिया है कविता लोहिया जी से क्षमा याचना सहित। एक दूसरे को काट कर बढ़ने के बीच मरघट से लाए नरकंकालों के ढेर, लंबी लाइन अस्पताल में, बीमार दम घुटाऊ दिल्ली में, रेडियो टीवी अखबार की बिकी हुई खबरों के बीच, गौरव गान के बीच कहीं धीमी रफ्तार में रेंगती गाड़ियां, कहीं तेज रफ्तार, इनर सर्किल की चकमक, आउटर सर्किल फुटपाथ पर सपरिवार रहते असंख्य बेघर लोग, प्लास्टिक तिरपाल में, कहीं झुग्गी झोपड़ी में। नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, लोकसभा राज्यसभा या सफर करते अनथक मेट्रो बस यात्री, किसी को मालूम है इन बेघरों का नाम और अता पता नागरिकता। तरह तरह की बातें और संदेह, ये बांग्लादेशी हैं नहीं बिहारी हैं, मुसलमान हैं नहीं दलित हैं, ये भीख मांगते हैं, इनका बहुत बड़ा गैंग है। ये भीख के पैसे से खरीदते हैं ड्रग्स, और महिलाएं हमेशा गोद में सोए हुए शिशु को लेकर मांगती है भीख। बच्चा रोता नहीं कभी, जब भी रोता है लोग कहते हैं माँ नस में सुई चुभो देती है। कुछ उसी फुटपाथ से सटे ठेके पर दारू बोतल हटाते
बिखरे चखने पर झाड़ू लगाते, इसी फुटपाथ के टूटे टूटे नल पर स्नान करती महिलाओं के अधखुले अंग देखकर जागता है हमारे भीतर का ऋषि वात्स्यायन और काम आध्यात्म। तब जबकि मेरा देश आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, तब जबकि मेरा देश संपूर्ण सांस्कृतिक राष्ट्र बनने की तैयारी में है, तब जबकि मेरा देश हर सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में व्यस्त है, तब जबकि मेरा देश राजनेता को भी उम्मीद भरी निगाह से देखता है, तब जबकि मेरा देश सभ्यता की नई कथा कहेगा। देश के सभ्य नागरिकों, चिपक जाओ टेलीविजन से कि समूचा दिन दफ्तर से काट कर सुकून की तलाश में बदलते रहो चैनल, झूठ सच मिली खबरों के आधार पर बनाते रहो धारणा। उन्मादी हवा की चपेट में तुम भीड़ प्रायोजित हिंसा को सही गलत ठहराओ और किसानों नौजवानों की आत्महत्या का मूल कारण तक नहीं जानते। मित्रों सभासदों मंत्रियों, अंतर है आरबीआई गवर्नर और अरुणाभ सौरभ के भारत में। बहुत अंतर है आरबीआई गवर्नर और अरुणाभ सौरभ में। बहुत अंतर है देश और देश में। नागरिक सभ्यता की मांग है कि सिल दिए जाए बोलने वाले होठ, कि हर अनहोनी से पहले लड़कियों, मेरे देश की प्यारी लड़कियों, लोहे के मुखौटे से ढक लो अपना चेहरा, लोहे के हिजाब में समेट लो देह, कि किसी हमलावर के तेजाब से न झुलसे, कि दरिंदों के हाथ न नुचे तुम्हारे मांस का लोथड़ा। आग होना है तुम्हें कि झुलस जाए अनचाही छुअन से अपरिचित हाथ। रोज नई व्याख्या, रोज नया अर्थ, रोज नया राष्ट्रवाद, रोज नया राष्ट्रद्रोह। भारत माता, ओ भारत माता, तुम ही कहो किससे पूछूं तुम्हारी परिभाषा। किस औरत की आत्मा में जा छिपी हो ग्राम वासिनी माता। दिल्ली में रहती हो कि चिल्का में, दलाल स्ट्रीट में या नंदन कानन में, बॉलीवुड में नोएडा फिल्म सिटी में, मणिपुर में दंतेवाड़ा में, सिंगूर में सेवाग्राम में या हम्पी में। सम्राट हर्षवर्धन की प्रेमिका हो या सम्राट बृहद्रथ की व्याहता। सम्राट हर्षवर्धन की प्रेमिका हो या सम्राट बृहद्रथ की व्याहता। पुष्यमित्र शुंग की पत्नी या राजेंद्र चोल की। यत्र तत्र सर्वत्र तुम ही नहीं हो भारत माता। कलेजे पे हाथ रखकर कहो मेरी माँ, क्या सचमुच तुम्हें बौद्धों का कटा हुआ मस्तक प्रिय है, या कि पारिजात पुष्प, या कि कोई कौस्तुभ भूषण। रात के तीसरे पहर में हर घर में जाग रही सुबक सुबक रोती हुई हमारी भारत माता, तुम्हें मेरे पिता ने, मेरे भाइयों ने डांटा है, पीटा है, प्रताड़ित किया है। कवि कलाकार चिंतक मारे जा रहे, कलाहीन होकर आर्तनाद करती हुई लुटी पिटी बिखरी धरती माता मेरी माँ आओ, मंदिरों की भित्तियों गवाक्षों गर्भ गुहाओं से अब बाहर आ जाओ, कि सेवालाल के घर दिवाली की मिठाई और जाहिद के घर ईद की सेवैयां ठंडी हो रही। आओ कि रमरतिया की थाली में भात बनकर छा जाओ। आओ कि रमरतिया की थाली में भात बनकर छा जाओ और पर्वतिया की दाल पर तड़का लगा जाओ। आ ही जाओ माता, आ ही जाओ माता, कि हत्या और आत्महत्या से पहले बेरोजगारों के घर उम्मीदों के दिए जलाए। शुक्रिया। बहुत क्या कहने, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बेहतरीन, बहुत अच्छी कविता समीचीन, साहब, बहुत राष्ट्रीय अच्छी बहुत परिदृश्य अच्छी कविता, सब बहुत कुछ को बधाई हो। लेकर के जो हमारे जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना जो कूट कूट के भरी है, और आपके जो उन्हें जो पीड़ितों के प्रति जो सहानुभूति आपने व्यक्त की है, और जो तेवर, जिस तेवर के साथ आपने अपनी बात रखने की जो एक जो प्रतिरोधात्मक, जिसको हम लोग पोएट्री ऑफ रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, to while presenting the social reality of the contemporary times, what we are observing all around us, what we are having to face at every step of life, particularly due at this point of time. बहुत बेहतरीन ढंग से आपने बताया, और सचमुच कविता में जो कविता को एक हथियार कहा जाता है, कविता को एक जो मुखर आवाज की संज्ञा दी जाती है, और
और उसके आपकी रचना में बिल्कुल वो सारे स्वर, वो प्रतिरोधी स्वर मुखरित हुए हैं। मैं आपकी बहुत ही एहसानमंद हूँ बड़ी और इस बात कार्य ये में है कि आकर किया। डॉक्टर अब अरुणाभ की कविता में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने भारत माता के एकमात्र ये कवि हैं पूरे देश में जिन्होंने भारत माता को इस स्टाइल से देखा। इन्होंने मैथिली में भी देखा है इस स्टाइल से और हिंदी में अच्छा भी हमने आज सुनी। मेटाफर है नहीं, मैथिली उसका। में तो नहीं देख पाया हूँ। कोशिश करूंगा। बहुत बहुत पहिल धन्यवाद। संग्रह के एकटा कविता हमरा जना मन पड़ैया। खैर हाँ, नहीं, वो तो तुलना छले मैं उन्मादिनी वाला जे कहै छलियै। हाँ, कोनो बात नहीं। हमारे जी साथ जी मैं नाब जी को धन्यवाद देते हुए हमारे साथ डॉक्टर कुमुदवाला जी मैम जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने अभी वर्तमान समय में पूरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर समस्त कवियों का प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ के रखी है। हम लोग भी उनके हिस्से बने हुए हैं। तो मैडम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत ही इस्तकबाल करता हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बहुत ही अब इससे पहले कि मैं दूसरे कवि को बुलाऊं, मैं सबसे पहले बाल मुकुंद को आवाज देना चाहूंगा। आई वुड इनवाइट बाल मुकुंद। मैं बाल मुकुंद जी के गज के हम बायोडाटा पढ़ के सुनाबे चाहे छी। बहुत ही एखन समकालीन युवा स्वर बाल मुकुंद जी इज बेसिकली अ पोएट and a literary critic, very active short story writer, and he is also doing cultural journalism. He is regularly writing in Hindi and Maithili with equal interest and pace. His writings have published in different journals and magazines. He has also co-edited and he has been a part of so many anthologies in Maithili. For example, one of them is Premak Timeline, very popular short stories, the collection of short stories. This apart, he is also a dashing editor who has edited several journals and souvenirs. And right now, presently he is the founder and editor of a very well-known Maithili web journal, eMithila. It has given a paradigm shift in the field of Maithili literature. It has given a new dimension to the young generations writing in their mother tongue. So welcome बाल मुकुंद जी, अहाँ के बहुत बहुत स्वागत। अब अहाँ से अनुरोध कि अपन कविता हमरा सबके सुनाबी, आदरणीय बाल मुकुंद जी। धन्यवाद भास्कर भैया और ISIR और मित्र गुंजन, अहाँ सब हमरा ई मौका देलहुँ और एकटा बहुत सुंदर आयोजन हमरा बहुत देर से सुनि रहल छी और बहुत नीक लागि रहल यऽ। हम आहे माहे से अपना के काज कहैत सोझे अपना कविता पर आबै छी और हमर पहिल कविता के शीर्षक अछि एहि नव भारत में। भाई भाई की ताकि रहल छी नक्शा में, भाई की ताकि रहल छी नक्शा में, एहि देशक नक्शा में नहीं अछि कोनो देश, ने इलाहाबाद आ ने मुगल सराय, जमरे ताकू भेटता दीनदयाल उपाध्याय। कतऽ बौआइ छी, कतऽ बौआइ छी, रेस कोर्स रोड अब नहीं जाइ छै प्रधानमंत्री निवास। सच कही तऽ PM सेहो PS छथि प्रधान सेवक। डलहौजी रोड, औरंगजेब रोड आब भऽ गेल इतिहास। भला फिरोज शाह की छनि योगदान, भला फिरोज शाह की छनि योगदान, कहू तऽ क्रिकेट में के केलक अरुण जेटली से फाजिल अवदान। अहाँ नव भारत में छी भाई, अहाँ नव भारत में छी भाई, एतऽ जनता के नव नाम अछि भक्त आ राजा के नाम भगवान। नित गारि सुनै छथि गांधी आ गोडसे के होइ छै गुणगान। युवा के नहीं चाही रोजगार, युवा के नहीं चाही रोजगार, वंदे मातरम आ जय श्री राम से चला लेते ओ अपन काज। पार्लियामेंट में पौन देखै छै नेता, बलात्कृत होइ छै स्त्री समाज। देश में एकैटा अछि पार्टी, देश में एकैटा अछि पार्टी आ एकैटा निशान। राजा छै देश आ वह संविधान, आ जे छै विपक्षी से देशद्रोही संतान। ई नव भारत छी भाई, ई नव भारत छी भाई। जाओ बेच आओ अपन नैतिकता, लो जाओ अपन आत्मा बागमती किंछर में, कऽ दियौ अंत्येष्टि, भरि लियो अपन दिमाग में राष्ट्रवाद आ धर्मक अफीम। ई नव भारत छी भाई, शीघ्र पूरा करू नागरिकता के नव अहर्ता। जुन करू कोनो सवाल, नहीं रह गेल अछि ई कोनो सवाल वाला देश। और हमर दोसर कविता के शीर्षक अछि आवाज।
आवाज बड़ हल्लुक अछि आइ कहब अपन गप नित बढ़ले जा रहल अछि कहबाक नव नव विकल्प आवाजक महासमुद्र में पहिने से डूबल अछि सबटा दिशा जेम्हरे तकैत छी सब दिस से अबैत अछि अगबे आवाज दूर दूर धरि नहीं अबरैत अछि कतहु कोनो चुप्पी सब सुना रहल अछि अपन अपन राग विराग उपराग नहीं सुनैत अछि कियो आनक कोनोटा बात कहबाक बिहाड़ि में उड़िया गेल अछि सुननिहार दूर बड़का परती पर ठाढ़ एसगर तार कानि रहल अछि मुन्हारि साँझ में पत्नहीन नग्न गाछ हाथ दे रहल अछि बसंत के बिल में दम सधने बेंग सुर पारि रहल अछि मेघ के केओ नहीं सुनैत अछि ककरो केओ नहीं सुनैत अछि ककरो चौक पर रियायत भिखमंगाक निहोरा नहीं सुनैत अछि टहलानी मारैत लोक विवश भय सड़क पर उतरल जन सामान्यक पीर नहीं सुनैत अछि सरकार भनसाघरक कोंटा धेने कनैत स्त्रीक बिहुअल स्वर नहीं सुनैत अछि पुरुष केओ नहीं सुनि रहल अछि ककरो भूख के नहीं सुनैत अछि अन्न प्यास के नहीं सुनैत अछि पानि पुरानक नहीं सुनैत अछि नवका नवका के नहीं सुनैत अछि पुरान केओ नहीं सुनैत अछि ककरो बस राति बिराति ठकुरबारी पर बजैत लाउड स्पीकरक आवाजक मध्य हमरा लग अबैत अछि दम्मा उखड़ल कोनो बुढ़ियाक खोखीक स्वर आ ओकर सबटा कफ आबि के हमर छाती में बैस जाइत अछि वाह, बहुत Powerful. बेहतरीन, बहुत 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 powerful लाजवाब। poetry. धन्यवाद इसको बोलते हैं समकालीनता, जो मॉडर्निस्टिक एलिमेंट है, बिल्कुल हट के, मतलब एक होता है, एक हम लोग बीटन ट्रैक पे चलते हैं ना, अगर हमारा विजन थोड़ा सा डिफरेंट हो, हमारा जो अपना सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन हो थोड़ा टोटली डिफरेंट हो, वो कविता में उसमें जान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद बाल मुकुंद जी। नाउ जाहिद भाई, एक्चुअली ही इज हैविंग ट्रबल विद द नेटवर्क, so let him first invite him. Muhammad Zahid, let me read out his bio. A poet and translator from Kashmir. He is a banker by profession. His maiden poetry collection, The Pheromone Trail, bagged the Best Book Award from the Academy of Art, Culture and Languages, Jammu and Kashmir in 2015. His poetry in English language has been published in various international journals. He has translated 2 volumes of Kashmiri Zuban and Shairi by Abdul Ahad Azad, a landmark literary work from Kashmir to English, published by the Academy of Art and Culture and Languages, Jammu and Kashmir, and Aina Khana by Aziz Hazini to English, published by Sahitya Akademi, New Delhi. A monograph on the blind poet Abdul Rahim Ama by Professor Margoob Banihali, translated by him from Kashmir into English. He has been recently been published by Sahitya Akademi as well. He is a translator editor for Kashmir at Muse India and Lakeview International Journal of Literature and Arts. So, welcome, Zahid Bhai. Please recite your poem. Unmute yourself. Thank you so much. Thank you so much. I hope I'm audible because there is some Yeah, issue very with clear, the. Quite very good. clear. Quite good. We can hear you very clear. So 2 short poems I'd read, if allowed. So the first poem goes by the name, the poem of pain. Tears ooze from the nib as it drags across the parchment of the soul. They pierce where the tip pricks. The stain radiates its crimson tinge, smoldering whatever is beneath, in a slow, persisting twinge that seeps deeper, finding its way to be called heartache. The nib carries on its journey of inking patterns, stitching together wishful days and uneasy nights, unmindful of the stains it leaves behind, some radiating, some permeating, some simply evaporating. The radiating one's scar, the permeating one's haunt, and both point to evaporating once every once in a while, smiling at each other. They all turn into stories, songs,
and colors too, from shrieks, sobs, sighs. Those days and nights heap up, interspersed, gradually getting heavier, thus forcing out a drop of seasoned ink of pain, splattering it across many such sewed up pages, instantly distributing pain to all those who stay behind. My second poem is The Story. Did you hear the story lost travelers tell each other to kill time in endless forests while in search of a road to take them home eventually? I had told someone, was it you? Or was I telling it to myself? The day when you left, there was no road ahead, nor one to retreat. I lay on the crossroads, face up, arms stretched east-west, nailed with persistent penitence. Patience looks hard in the beginning, harder midway, but fruitful in the end. Likewise, I turned into a compass on the crossroads like a milestone, telling it was a long road ahead, longer even to retrace, unending on the right, infinite on the left. Still, I worked like a compass, showing north upwards. The shortest distance was escape. And then the whirlwind came, turning the compass into a weather vane. The tempests of fate, lost in the foggy forests. North was everywhere. There was no escape. The story ends unfinished. Thank you. Very Nandita well, madam, very well. Both the poems are please. very good. Very good. Very good. Thank you. Very Thank you, much. sir, so much. As Very usual, powerful, very beautiful very poems. sensitive, very. And the way you have recited deserves more attention because Thank you, sir. the Thank stress on each and every word with different tones, it Very has given a different articulate, dimension yes. to the room. बहुत ही खूब, So बहुत खूब. wonderful. Thank you, sir. Thank you. Thank Okay, you so much. Thank you so much. okay, thank you. Now moving on to very small bio, 2 lines bio, and he is Narayanji Mishra. Let him invite him. Let me invite him. Narayanji Mishra, please recite your poem. Here is his bio. He is a teacher by profession and a creative writer in Maithili and Hindi. He is basically a poet endowed with critical thinking, giving realistic approach to life and expressing the complexities of life in his writing. Respected Narayan Ji Mishra. धन्यवाद। द्रष्टा तुल्य सब अतिथि के नमस्कार करैत हम अपन कविता आरंभ करै छी। हमर पहिल कविता अछि विश्व शांतिक दिशा। विश्व शांतिक लेल कतेक उताहुल अछि लोक। विश्व शांतिक लेल कतेक उताहुल अछि लोक। नाभिकीय भट्ठी धधकि रहल अछि भविष्यक हविष्य हेतु। ओटियाओल जा रहल अछि फेर कोनो नागासाकी। हालांकि राष्ट्राध्यक्षक ग्लोबल मीट में वर्धमान परमाणु संपन्नता पर माथ हवबैत देखल जाइत छथि एशिया आ अफ्रीकाक हालत पर चिंतातुर थिंक टैंक सब आ सभा सँ लौटिते चूल्हाक चिंता में ढूढ़य लगैत छथि बाजार। असलाक खेप संगे साइट अबैत छथि धर्म प्रचारकक श्वेत दल। आगू बनल रहबाक कछमच्छी में मुंह पर शांतिक रोगन चढ़ा
बानर जकाँ शक्ति संतुलन करैत घोटने जा रहल छैक ओ मुहगरहा पासंग भरि शांतिकेँ। हिटलर आ मुसोलिनीक संतान सब करैत रहतै शांतिक बलात्कार ता धरि जा धरि बारूदक सिल्ली बटाइत रहतै बपौटी बूझ शांत अविकसित देश सबमे आ मोहम्मद ईसा शंकर बुद्धक संतान होइत रहतै खून खूनामे। हमर दोसर कविताक शीर्षक अछि मसीहाक चक्रचाइल। केना कचरै छै लोक एक दोसराकेँ ककरो बनाबै लेल मसीहा। उसरैग दै छै जिंदगीकेँ कोनो रूढ़िक आह्वान पर। केना दबोचि लै छै जड़ता एकटा चेतनावान प्राणीकेँ। जखन कि अनुभव छै जगतकेँ एखन धरि ठकाइते रहल है लोक, पिसाइते रहल है मसीहा सभक षड्यंत्रमे। कहिया चेततै लोक महाजनो येन गतहक, कहिया टूटतै इंद्रजाल। स्टीरियोटाइप्ड विचारक जांत में कहिया धरि पिसैत रहतै अपन जीवंत अनुभूति। कहिया बुझतै मसीहाक चक्रचाइल। संवेदनाक आहुति कहिया धरि दैत रहतै सुभीता तकैत स्वार्थक कुंड में। जँ मरिए जेतै मनुख कोनो दारुण अभिष्ट लेल तऽ लहाससँ पटल ई संसार की करतै लऽ कऽ विचार आ दर्शन। मनुख पर्याप्त छैक अपन सब त्रुटि आ सीमाक संग, नहि बनबाक छै ओकरा असीम स्वप्नमे। नहि ठोकबाक छै ध्वज व्यक्तिक माथ पर करय लेल जाति विजय। सुनाई छै ओकरा जुग जुगक विजय गाथा में मनुक्खक विलाप। बलि देल गेल ओहि लोकक जकरासँ छीनल गेलै छोट छोट सुख, हंसी आ हतल गेलै बड़का सुखक प्रलोभन। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छी सुंदर। कविता, बहुत सुंदर, सुंदर नारायण वेरी जी, बहुत रेलिवेंट। सुंदर बहुत कविता सुंदर, नारायण जी। बहुत। Please keep writing like this. Very nice poems. Very Very nice. बहुत deep, बहुत profundity of thoughts, the vision, the contemporary reality. Once again, very reflect. All these things are reflective in your poem. बहुत बढ़िया. Now, Imran Yusuf Bhai, actually, he's also from Kashmir, and he's having some problem with his network also. So why not invite him and let him read out his poem? So, Nandita Okay, ma'am, please welcome. read out Imran Yusuf's bio. A warm welcome, Imran. Nice meeting you again. Please unmute yourself. Imran Yusuf is a poet, critic, writer, columnist, translator from Kashmir, India. He has contributed poems to various reputed magazines, journals, and international anthologies. He has co-authored more than 20 anthologies and has also written a series of articles about the great Sufi poets of the Kashmir Valley, starting from the 14th century, which were published across various newspapers and magazines and now being compiled into a book to be launched soon. He is presently engaged in interviewing the current generation of great poets of the Kashmir Valley. The articles will also be compiled and given shape of a book soon. Welcome you, Imran. Please read two of your poems. Can't hear you, Imran. Imran, you're not audible to us. Yes, Imran. Yes, yes. Now, please unmute yourself. Please unmute yourself, Imran Bhai.
Now he's out of network, it seems. Video is off. I think he's walking somewhere in search of connectivity. No, sir. That is the Actually, problem. he was sitting inside. Later on, he came out. No, he's out. Sir, He's trying to get the Najki sir, what is the signal, right? reason? What Najki sir, what is the reason that you are not having any problem? You're okay with your network, but Yeah, Most no, of the he- time he because has, of network- fortunately. I'm in Eh. Srinagar. He is not in Srinagar. He is in some town, you know. Oh, There must be a this is- connectivity issue there. Yeah. Srinagar is still better, you know, as far as connectivity is concerned. Zahid also was outside the city. That's why he had so many problems connectivity. He's not able to. No problem, Bhaskar ji. Silence is also a very beautiful poem. So Oh yes, we one must of the consider that. most wonderful poems. Yeah. So we must consider that with the poem, sir. yeah. Yeah, Yes, now yes, you are- Imran. Yes, come I on now, got you. I come got on. you. I got you. Finally, you are here. चलिए Yes, बोलिए. yes, yes. Go on. Do it, fatafat. पढ़िए. Hello, am I audible now? Yeah, Yes, yeah, yes, yeah, you yeah. can Quite go on possible. now. Okay. So I will go fast. I don't know कि network रहे कि ना रहे. तो my first poem, it is untitled. I have not named it anything. So the poem goes: Do you too feel the pure emptiness that lies inside me and in you too? The emptiness that carries secrets as lovers do, secrets which can never be penned in any language. Come, hold my hand and let us leave behind this material world. We go with the wind like a stream that goes down the hill to meet and mingle with the sea finally. Let us begin the journey home together again. A sweet voice is calling us back. The caravan is here. Our souls do not belong here. I know you won't come. You will keep me waiting like the last time. I am silent now. I only recite praise poems, the words that glorify you. So you become live poetry for the generations to come. I am clear in my words, like a mirror that reflects nothing but the truth. I am silent now. I only now, now when I look around, I see things have changed. I see no clarity in any voice. There is no more right and wrong. In your love, I have crossed those limits, the limits that run us till we taste the goblet of death. The second part of the poem goes like this: I still wait on the windowsill to have your one glance, to realize the pure self. Words and language may change with time, but the yearnings of self remain the same. So neither I use any language nor any words now. The essence of this quest lies beyond time and space. The deepest purpose of this journey is to follow the guided footprints. Come, be a part of this caravan. Let us keep the fire of this longing burning and tread the seven earths and nine skies. Let us guide each other with passion and love. Let us cross the sea of separation and touch the realm of the union. Let us travel the path of pain to the lands of oneness. Jana, there is no manifestation without you, and there is no existence without I. We both live to give life to each other. I would never seek unification if you weren't the destination. Thank you. I hope I did it. You Very got good, it. I'm very very good. happy that you made it after all. I'm so Achhi happy baat. that you made it after all. And that the tone, the tenor, the tropes that you have used are brilliant, remarkable. Very, very, very powerful. Thank you, sir. Thank you so much. But I think the Thank you. service provider, the internet service provider, had seen his poem because it was all about silence. So they tried to keep him silent. Thank you, sir. Thank you, sir. Some words from Nanta ma'am. Yes.
Hello, can you hear Want me? to say, you want to say anything regarding this poem? Yes, Imran, I could hear you very clear finally, and it was a very beautiful poem as usual. I have read you before and I have heard you before. So always I feel that you write something which says more about silence, more about the darkness, and they are somewhat very deep, having two ends to the same poetry, the darkness or the silence. It does not mean actually the silence that we literally say. Very deep and intense poem. Thank you, thank you. Now moving on to the next poet. Uh, as I in the very beginning, yes. So Dr. Bimle Tripathi is with us. So sir, welcome. त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आपका, और आपकी उपस्थिति ने हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा को अवश्य एक नई ऊंचाई दी है। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को। अब मैं नंदिता मैडम से आग्रह करूंगा कि कृपया उनका बायो पढ़ के सुनाएं, और त्रिपाठी जी इसके बाद अपनी कविता सुनाएं। बिमलेश त्रिपाठी जी चर्चित कवि एवं सुप्रसिद्ध लेखक हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय से केदारनाथ सिंह की कविताओं पर पीएचडी किया है। कविता और कहानी का अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद। अहनद कोलकाता ब्लॉग का संचालन एवं संपादन। लोकगीत और अभिनय में विशेष रुचि। कविता संग्रह कंधे पर कविता दैनिक जागरण बेस्ट सेलर 2018 में शामिल। एक कहानी पर फिल्म निर्माण। अब तक 5 कविता संग्रह, 1 कहानी संग्रह, 2 उपन्यास और 1 आलोचना की पुस्तक प्रकाशित है। भारतीय ज्ञानपीठ के नवलेखन सहित कई महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित। कोलकाता में रहते हैं। वेलकम यू टू रीड योर पोएम। बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज जा पा रही है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं 2 कविताएं पढ़ता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों का आभार कि मुझे यह मौका मिला, आप लोगों के साथ कुछ कविताएं सुनाने का मौका आपने दिया है मुझे। तो एक छोटी कविता और एक थोड़ी सी लंबी कविता मैं पढ़ूंगा। पहली कविता का शीर्षक है हम बचे रहेंगे। सब कुछ के रीत जाने के बाद भी माँ की आंखों में इंतजार का दर्शन बचा रहेगा। अटका रहेगा पिता के मन में अपना एक घर बना लेने का स्वप्न, ढह रही पुरखों के हवेली के धरन की तरह। तुम्हारे हमारे नाम के इतिहास में गायब हो जाने के बाद भी पृथ्वी के गोल होने का मिथक उसकी सहन शक्ति की तरह ही बचा रहेगा, और हम बचे रहेंगे एक दूसरे के आसमान में आसमानी सतरंगों की तरह। और दूसरी कविता है कविता से लंबी उदासी। कविताओं से बहुत लंबी है उदासी। कविताओं से बहुत लंबी है उदासी। यह समय की सबसे बड़ी उदासी है जो मेरे चेहरे पर कहीं से उड़ती हुई चली आई है। मैं समय का सबसे कम जादुई कवि हूँ। मेरे पास शब्दों की जगह एक किसान पिता की भूखी आंत है, बहन की सुनी मांग है, छोटे भाई की कंपनी से छूट गई नौकरी है, राख से कुछ गर्मी उधेड़ती माँ की सुजी हुई आंखें हैं। मैं जहाँ बैठकर लिखता हूँ कविताएं, वहां तक अन्न की सुरीली गंध नहीं पहुंचती। यह मार्च के शुरुआती दिनों की उदासी है जो मेरी कविताओं पर सूखे पत्ते की तरह झर रही है,
जबकि हरे रंग हमारी जिंदगी से गायब होते जा रहे हैं और चमचमाती रंगीनियों के शोर से होने लगा है नादान शिशुओं का मनोरंजन। संसद में बहस करने लगे हैं हत्यारे, संसद में बहस करने लगे हैं हत्यारे। क्या मुझे कविता के शुरू में इतिहास से आती हुई लालटेनों की मध्यम रोशनियों को याद करना चाहिए? मेरी चेतना को झकझोरती खेतों की लंबी पगडंडियों के लिए मेरी कविता में कितनी जगह है? कविता में कितनी बार दोहराऊं कि जनाब हम चले तो थे एक ऐसी जगह को पहुंचने जहां आसमान की ऊंचाई हमारे अप्रैल के बराबर हो, और पहुंच गए एक ऐसे पाताल में जहां से आसमान को देखना तक असंभव। अच्छा, वहां कितनी उदासी होगी जहां लोग शिशुओं को चित्र बनाकर समझाते होंगे आसमान की परिभाषा। तारों को मान लिया गया होगा एक विलुप्त प्रजाति। कविता में जितनी बार लिखता हूँ आसमान, उतनी ही बार टपकते हैं माँ के आंसू, उतनी ही बार पिता की आंत रोटी रोटी चिल्लाती है। जितने समय में मैं लिखता हूँ एक शब्द, उससे कम समय में मेरा बेरोजगार भाई आत्महत्या कर लेता है, उससे भी कम समय में बहन औरत से धर्मशाला में तब्दील हो जाती है। क्या करूं, क्या करूं कि कविताओं से लंबी है समय की उदासी, और मैं हूं समय का सबसे कम जादुई कवि। क्या आप मुझे क्षमा कर सकेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, वाह, बहुत बहुत उम्दा। बेहतरीन, क्या मस्त, बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट। और यस, खास करके आपकी कविता पर जो विनोद कुमार शुक्ल और उदय प्रकाश का ये जो प्रभाव है ना, वो अभी तक मुझे भी वो प्रभाव प्रभावित करता रहा है। त्रिपाठी जी सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बहुत 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 शुक्रिया, खूब, बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल मतलब शब्द नहीं है, इतना वेरी पावरफुल, इतना बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए अब त्रिपाठी जी को धन्यवाद देते हुए अब हाँ हमारे हाँ, पास एक और बहुत ही प्रतिष्ठित एक शख्सियत हमारे बीच में है, कुमुदवाला मैडम। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि मैडम आई है और हमें हमारी जो हौसला अफजाई है कर रही है शुरू से अंत तक। अब मैं नंदिता मैडम से भी आग्रह करूंगा कि उनका जो बायो डाटा है वो पढ़ के सुनाएं और थोड़ा सा हम लोग इनसे सीख लेंगे कि किस तरह से इस अवस्था में आकर भी जो साहित्य सर्जना और एक जो साहित्य जो प्रचारित प्रसारित करने के जो डिफरेंट जो रूप हैं उसमें इनको महारत हासिल हो गई है। और जैसा मैंने बताया था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कवि हैं सबको जोड़ के रखी हैं और हमेशा जो हर एक माह में एक जो कविता पाठ की जो धारावाहिकता है वो चला रही है। बिल्कुल। अब बायोनोट में विशेष जानकारी मिलेगी। नंदिता मैडम। Welcome, ma'am. Dr. Kumud Bala, a lecturer by profession, has been penning poetry for 4 decades now. Writing has been her passion since childhood, and her forte lies in poetry, stories, essays, research papers, and more. Her works have been published in several newspapers, magazines, and journals. With over 5,000 poems to her credit, that is very brilliant, ma'am. She participates regularly in Kavi Sammelan, organized at national and international level. With a DLIT award from Nagpur, Jyotiba Phule University and Research Center. Is my voice echoing too much? No. It's okay. It's okay? It's okay, okay, thank you. Yeah. I repeat, with the DLIT award from Nagpur Jyotiba Phule University and Research Center and honorary Sahitya Vibhushan award by late President Shankar Dayal Sharma,
Sahitya Sagar Samman at the World Book Fair 2017, Delhi. To her credit, she has started 3 groups, which are Mahila Kavya Manch Andhra Pradesh, Kavya Kaumudi Chetna Hindi Manch, Kavya Kaumudi International Multilingual Poets Group, which is associated with Telangana Sahitya Academy, of which Bhaskar was mentioning. They are 3 groups that regularly make poets come together. There are regular poet meet programs in each of these groups. She is regularly sought for her work by leading publications and media houses. Recently, she was chosen as Poets of the Week by the President Shikdar Mohammad Kibriya of Poetry and Literature World Vision. She was recently published in the paper in Uruguay, Uzbekistan, and Germany. She is a very renowned and our favorite poet, Kumud Balaji. She is a very kind person who individually goes to inbox and join poets together for multilingual sessions. I'm so humbled to have you here, ma'am. We are honored. Good evening, everyone. And I'm very much grateful that I have received the invitation from ISISAR Kolkata. And it is my privilege to be present here. और आज मैं इस मंच पर उपस्थित हूँ. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. भास्कर जी, नंदिता ने बहुत कुछ मेरे बायो में कहा है. आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. और आप सभी की कविताएं मैं बहुत देरी से सुन रही हूँ और सभी कविताएं एक से एक हैं, चाहे वे मैथिली में हो या इंग्लिश में हो या हिंदी में हो. सभी बहुत सुंदर कविताएं पढ़ रहे हैं. आइए आज मैं अपनी कविता भी प्रस्तुत करती हूँ. 2 छोटी कविताएं हैं. मेरी कविता की विशेषता यह है कि यह दृश्यात्मक चित्र प्रस्तुत करते हुए चलती है, जो आपकी आंखों के सामने ऐसा लगेगा कि वे दृश्य आप देख रहे हैं. आइए आपके सामने मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ. कविता का शीर्षक है विश्वास. जब बीज धरती की क्रोड में जाता है, जब बीज धरती की क्रोड में जाता है, मिट्टी की सुगंध के आगोश में प्रस्फुटन की प्रक्रिया से गुजरकर, मिट्टी की सुगंध के आगोश में प्रस्फुटन की प्रक्रिया से गुजरकर, फूलों को गुदगुदाते हुए फलों से लदकर, फूलों को गुदगुदाते हुए फलों से लदकर, जब वृक्ष की शक्ल ले हवाओं संग झूमता है, जब वृक्ष की शक्ल ले हवाओं संग झूमता है, विश्वास का दामन थाम लेता है, विश्वास का दामन थाम लेता है. जब विरहन धरती की प्रणय पाती, जब विरहन धरती की प्रणय पाती, मतवाले काले बादल मेघ दूत बनकर अंबर तक पहुंचाते और इतराते हैं. वर्षा की जलधार सराबोर कर जाती है, वर्षा की जलधार सराबोर कर जाती है. धरती का वह सुलगता अश्रु, धरती का वह सुलगता अश्रु विश्वास का दामन थाम लेता है. धरती का वह सुलगता अश्रु विश्वास का दामन थाम लेता है. और आगे, जब माँ की गोद का नन्हा शिशु, जब माँ की गोद का नन्हा शिशु क्रंदन कर लोरियों की डोरी थाम किलकारियों से मन मोहने लगता है, जब माँ की गोद का नन्हा शिशु क्रंदन कर लोरियों की डोर थाम किलकारियों से मन मोहने लगता है, माँ की छवि पहचानने लगता है, माँ की छवि पहचानने लगता है और शीतल स्पर्श से निद्रा में मुस्कुराता है, विश्वास का दामन थाम लेता है. और अंतिम बंद है, 2 अजनबियों की मुलाकात, 2 अजनबियों की मुलाकात, थोड़ा इनकार थोड़ी मनोहार, थोड़ा इनकार थोड़ी मनोहार, संकुचन की कलिका और प्रणय एहसास, संकुचन की कलिका और प्रणय एहसास, अधरों से अधरों की लुक छुप बात.
अधरों से अधरों की लुक छुप बात, पलकों की टंकन से उपजा अनुराग, पलकों की टंकन से उपजा अनुराग, विश्वास का दामन थाम लेता है, विश्वास का दामन थाम लेता है। यह थी मेरी पहली कविता जिसका शीर्षक था विश्वास, और आगे की कविता का शीर्षक है शांति की खोज। सूर्य की पहली किरण आगे बढ़ी, सूर्य की पहली किरण आगे बढ़ी, देखा एक कुत्ते का जख्मी पिल्ला, देखा एक कुत्ते का जख्मी पिल्ला, माँ आंसू बहा रही थी, माँ आंसू बहा रही थी और लोग तमाशा देख तालियां बजा रहे थे, माँ आंसू बहा रही थी और लोग तमाशा देख तालियां बजा रहे थे। उस गली से मुड़ दूसरी गली का रुख किया किरण ने, उस गली से मुड़ दूसरी गली का रुख किया किरण ने, शमशान घाट पर माँ बाप बैठे मिले, शमशान घाट पर माँ बाप बैठे मिले, बेटे ने छोड़ दिया था मरने के लिए, बेटे ने छोड़ दिया था मरने के लिए। किरण जैसे ही मुड़ी तीसरी गली, किरण जैसे ही मुड़ी तीसरी गली, उसने देखा मासूम कली, उसने देखा मासूम कली, मछली जा रही थी और सब थे चुपचाप, मछली जा रही थी और सब थे चुपचाप। चौथी गली का नजारा अलग था, चौथी गली का नजारा अलग था, पति की दूसरी पत्नी पहली को पीट रही थी, पति की दूसरी पत्नी पहली को पीट रही थी और पति मूंगफली खा रहा था, और पति मूंगफली खा रहा था। उफ, मानो क्या विभत्स रस का पुजारी है, मानो क्या विभत्स रस का पुजारी है। नहीं, अब इन गलियों से ऊपर उठना होगा, नहीं, अब इन गलियों से ऊपर उठना होगा। जब मंदिर मस्जिद से मिली किरण, जब मंदिर मस्जिद से मिली किरण, थोड़ा घबराई पर हवाओं संग आगे बढ़ आई, थोड़ा घबराई पर हवाओं संग आगे बढ़ आई। सूखे वृक्ष से जा टकराई, सूखे वृक्ष से जा टकराई, पल्लव फूटने लगे, सूखे वृक्ष से जा टकराई, पल्लव फूटने लगे। प्रदूषित और ठहरी हुई नदी से मिली, प्रदूषित और ठहरी हुई नदी से मिली, लहरें खेलने लगी अटखेलियां, लहरें खेलने लगी अटखेलियां। बादल ने किया स्वागत, रिमझिम वर्षा हो गई, बादल ने किया स्वागत, रिमझिम वर्षा हो गई। किरण अब समझ चुकी थी, किरण अब समझ चुकी थी, विभत्स रस को बदलना पड़ेगा शांति रस में, विभत्स रस को बदलना पड़ेगा शांति रस में, वरना सभ्यता क्या मनुष्यता खत्म हो जाएगी, वरना सभ्यता क्या मनुष्यता खत्म हो जाएगी। किरण ने चेताया, किरण ने चेताया, आगे बढ़ी, क्योंकि उसे तो शांति मिल गई थी, क्योंकि उसे तो शांति मिल गई थी, शांति मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जितने धैर्य से सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे the second last and the man who has very capable of doing a lot of things at one time. He is none other than Gunjan Sri. So I welcome him, though he has been right from the very beginning. So Gunjan Sri, here is his bio. Gunjan is one of the dashing and leading writers of his age group, writing in Maithili and also in Hindi. Working in the zone of IT, he has authored 2 books in Maithili with diverse skills like a literal entrepreneur, editor, theater artist, musician. He is many things to many people. He is the impact officer of Patna Hub of Global Shapers Community, an initiative of the World Economic Forum. He is also a young climate reality leader, CRL, of India, the Climate Reality Project, and one of the very renowned books I have read
is his Maithili Kavita Sangrah Tarhatti Par Samay. Tarhatti Par Samay is one of the very important books of this time that I have read. So, with these words, I welcome and request Gunjan Sari to invite Gunjan Sari to read out his Maithili poetry or ghazals. थैंक यू थैंक यू गायब के पहले बहुत बढ़िया मजा आए जात हम कविता तरन्नुम में तैयार कर करने रही एक मिनट एक कविता एक तरन्नुम में पहली हुई गजल पहले हम एक कविता कविता पढ़ दै छी मोस्ट वेलकम जी जी कविताक शीर्षक कागज सँ फारकैत पबैत सौन्दर्य बोध। धन रोपनीक अलखैत चान सनक खेतक माटि में भीजल उमकैत आत्मा, खलसैत खेत पथार आ ताहि में घरेर करैत धानक बीट, आ ओतै ठाम ठीम टोबल मनोरथ, गर्भाधानक आभा सँ बेहुसैत आरि धूर। नाग पंचमी मधुश्रावणी पूजैत बेटी धीक आंचर में गांथल मनोरथक महासागर। आम जाम सँ गमकैत किलकैत लग पास, हरक भीठ धैने साल भरिक मनोरथ पूर करबाक चिंता सँ हुमरैत एकटा मोन। हम जे घुरि अयलहुँ अछि से कि ओहिना, हम जे घुरि अयलहुँ अछि से कि ओहिना विपत्तिक मारल छी, मुदा सौन्दर्य बोध सँ डगडग करैत अछि आत्मा हमर। हम मिथिलाक ओ क्षितिज छी जे एखन तऽ रिक्त अछि, मुदा लगले देखब अहाँ हमरा पर ढौरल गाम गाम में चुमकी सँ भरल धाप देबाक लेल सहजोर करैत एहि मिथिलाक सहस्त्र नेना सभक मनोरथक अइपन। हमर सौन्दर्य बोधक मूलाधार बस कागते टा पर बटगबनी गयबाक लेल नहीं अछि। हम उतारऽ चाहैत छी एकहकटा के सबटा सौन्दर्य बोध अपन परिवेशक हाथ पकड़ि अपना जीवन में, अहाँक जीवन में। आजीवन तऽ एखन खनखन करैत बौआ सभक गाम घुरि अयबाक स्वागत में ठाढ़ अनुराग सँ भरल मिथिलाक हवा बसात माटि पानि चौर चाँचर आ गाछी बिरछी में अछि। एकटा हमर गजल एते प्रपंचक खेला बेला, एते प्रपंचक खेला बेला, सब तरिला धल कोना रहै छै, अहंकार आ उकटा पैंची एहि में बाझल कोना रहै छै। एते प्रपंचक खेला बेला, आय जखन की नीति कोदारिक अपने ने सब लोक आय जखन की नीति कोदारिक अपने ने सब लोक एता, एहन समय में ओ बिलटौआ घर सँ भागल कोना रहै छै।
एते प्रपंचक खेलावेला। अगला शेर। एते नहारा उचती मिनती तैयो घरक हाल बेहाल। फूल जकाँ संबंधक माला, फूल जकाँ संबंधक माला। अपरूपता गल कोना रहै छै, एते प्रपंचक खेलावेला। अगला शेर। हिनकर हुनकर रहनि मामला, अहाँ बीच में त घुसिएलहुँ। न्यायक मुँह पर धरि अन्यायक चेफरी साटल कोना रहै छै, एते प्रपंचक खेलावेला। अंतिम शेर एक गजल के। कोना हेतै जे चमक दमक में सब बितलाहा बिसरी जाई हम। कोना हेतै जे चमक दमक में सब बितलाहा बिसरी जाई हम। कोना कही निज लोकक हाथे, कोना कही निज लोकक हाथे। दागल बाछा कोना रहै छै, एते प्रपंचक खेलावेला, एते प्रपंचक खेलावेला। Thank you. Fantastic, fantastic. Very nice. Good बहुत entry. बढ़िया, बहुत सुंदर जी। So what a brilliant cadence, the intonation, the aroh abroh, all these things, fantastic, बहुत बढ़िया। Poetry and music actually are both are synonymous. Wonderful. Now our last participant, Sandeep Gupta ji, and I would request Nandita Samanta ma'am to read out his bio. Sandeep Gupta. Sandeep bhai, welcome. Sandeep Gupta, born and brought up in Kolkata, is a aspiring chartered accountant student working in a private company in Kolkata. He is published author of Rabta-e-Ishq, a composition of love poems. He writes in the name of thee and have contributions to different anthologies. He is associated with different literary organizations and is a young, dynamic, multilingual poet who believes in the traditions and rituals. He believes in simple living, high thinking. He always extends hands to help people and lives for poetry and literature. Welcome, Sandeep bhai. Read your poems. इंतजार करने के लिए शुक्रिया। Thank you, Didi, and thank you all my fellow poets and all who are present here and who are hearing me. और मैं हिंदी में एक कविता सुनाऊंगा मेरी, और मैं प्रेम लिखता हूँ और प्रेम आज की सबसे बड़ी जरूरत है, तो मैं वही कविता प्रेम के ऊपर में मेरी एक छोटी सी कविता मैं सुनाता हूँ आप लोग को। कि दौर ये है कठिन, दौर ये है कठिन, तुम प्रेम बनाए रखना, तुम प्रेम बनाए रखना, जो हिम्मत जवाब दे मेरी, जो हिम्मत जवाब दे हमारी, तुम ढांढस बंधाए रखना।
तुम ढांढस बंधाए रखना। जो नहीं मिल पा रहे हम अभी, जो नहीं मिल पा रहे हम अभी, तुम उम्मीद जगाए रखना। दिल की दहरी पे तुम प्रेम का दिया जलाए रखना। दिल की दहरी पे तुम प्रेम का दिया जलाए रखना। है सिलसिला जो बातों का, है सिलसिला जो बातों का, उसे जमाए रखना। कभी तुम कर लेना, कभी हम मिला लेंगे। कभी तुम कर लेना, कभी हम मिला लेंगे। बातों में मिठास मिलाए रखना, बातों में मिठास मिलाए रखना। ओझल देखा है सितारों को होते हुए, ओझल देखा है सितारों को होते हुए। हमने बहुत जन को खोया है इस कोरोना महामारी में, तो जो हमें बहुत प्यारे थे, जो हमारे अपने थे, तो इसलिए मैंने लाइन लिखी है कि ओझल देखा है सितारों को होते, तुम रातों को जगमग कराए रखना। हर सुबह मिलने की कसम देकर, हर सुबह मिलने की कसम देकर, दिल को धड़काए रखना। हो जीने की लाखों वजह हमारी, हो जीने की लाखों वजह हमारी, अपनी मन्नतों से महकाए रखना। तुम्हें माना रब अपना, तुम्हें माना रब अपना, अपनी दुआओं में बरकत लुटाए रखना, अपनी दुआओं में बरकत लुटाए रखना। और दौर ये है कठिन, तुम प्रेम बनाए रखना। जो हिम्मत जवाब दे हमारी, तुम ढांढस बंधाए रखना। शुक्रिया, थैंक यू द होल टीम, थैंक यू। बहुत good, बहुत good. So almost all except 3 or 4 poets, almost all have recited their poems. So, but because of some problems, the personal problems, they have not been able to join us. So with this, before we declare the program to end, Ayaz Rasool sir has been with us from the very beginning. Sir, just in a few words, I would like you to just give your concluding remarks. Thank you, Bhaskar ji, and it has been 2 hours of poetry in at least 3 languages, Maithili and Hindi and English. And what I observed or what I understood from various poets whom we heard here, there's a very strong current of contemporary affairs in our poetry now. Many of our poets recited the poems which are contemporary in nature, which are a comment on the current affairs, whatever is happening in the country, in the society. And that augurs well for the society. When the poet is awake and alive, then the safety of the society is ensured. And there were lyrical poems also, the love poems and routine poetic affairs. But this contemporariness in our poetry, that was very marked and very profound. I am really happy to have been associated with this, with the ACCR for the last few years, and the moving spirit behind this whole movement, Sri Chattopadhyay ji and Sudipto ji, Nandita ji, and of course Bhaskar, who has been in touch with all the poets, and you must have contacted me at least 4, 5 times, 6 times. So you worked hard, and I am so happy that you carried the day very well. Gunjan ji, जिन्हें मैं पहले से नहीं जानता हूँ, and he was here and did very well. I heard his poems also, which are, though they are in a different language, but the language of poetry is the same everywhere. Maithili is very similar to Bengali and Hindi. Correct. It is a mix of the two. Nandita, otherwise also, you listen to any poetry of any language in the world. If you are a poet and if you know how to listen to a poem, then you understand what is happening. It goes into your soul. It may not go into your mind, but it goes into your soul. There you realize the experience of that poet which comes through. That is true of music also. How much music do we understand? But we realize that music inside us. Whether it is Western music, whether it is our own music, whether it is Carnatic Sangeet, whatever Sangeet comes to you, we know, we receive that. We have the receiver somewhere inside,
That's true of poetry also. So I'm very happy that I could make it today and spend these 2.5 hours, I suppose, with you. And let us hope we have many more such occasions. And I once again congratulate the team who conducted this and the team that is behind the screen. Thank you very much. God bless you all. I'm so happy. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Nandita ma'am, she She left from here. okay. So now I'm going to give the vote of thanks very short and just it will take only 4 to 5 minutes. Yes, Nandita Samanta is here now. Nandita ma'am, would you please say just a very something in a very few words? Can you hear me? Am I audible? Yeah. I can hear you. Okay, I would say this session today was very enriching. The values that we actually got to know, the contemporary understanding of the poets that were shared is remarkable, and definitely we get a lot of ideas and impetus for writing from these poets who have so much of powerful, proverbs. Like sometimes we think that we can think their way. It is really very nice, and having Ayaz sir throughout the session was really an honor. It is always a privilege to hear you, sir. We learn from you every time you come and spare your time and share with us your opinion, your poems. They are very learning. And since peace is a movement, a process where we are bound together to make a progress to a better world, so this was a platform which definitely helped us do so. And the purpose of this poetry peace meet was really a success. Thanks, Bhaskar, for bringing in so beautiful and such powerful poets to this session. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now, And actually, Gunjan just Shri, vote of thanks. very many thanks to Gunjan Shri for his technical help. Yeah. This was really a very nice session, and it couldn't be possible without you. Oh, okay. Thank you. Exactly, you're right. Now, the time to wind it up. I would like to thank all the poets who have participated in the meet and made this event truly a successful one. So big thanks to all the poets. A special thanks to the office bearers of ISISAR for organizing such a beautiful program. I'm also thankful to Ayaz sir for having his ear eye on the overall program and for giving such a wonderful observation. I'm also thankful. I also express my deep sense of gratitude to Nanta ma'am for guiding me, for being with us from start to finish, and also for introducing the poets to all of us. Last but My not the pleasure. least, I would like to extend my heartfelt thanks to none other than Gunjan Sri for providing a technical support, not only a technical support to all of us in all the way, but also just for his tarannum, for his ghazal, and for his poetry, and the generosity, the kind gesture that he has shown on his part is really commendable. I will cherish it for a long time. I am now before I end, I must take the name of Sudiptoda, Shantinath Chattopadhyay sir, Biplav Majida, and Mudit Chatterjee for organizing this program. Once again, a lot of thanks to all the poets and thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Good night. Okay.